then the probability of occurring all the three events, the probability of occurring all the three events, that is A, B and C is given by, ये देखो formula, probability of A intersection B intersection C, answer is equal to P of A into P of B into P of C. And now you answer, फटाफट. If A, B and C are the three events, so in that case, if A, B and C are the three independent events, so can I say that A dash, B dash and C dash, they are also the independent events? Say the given statement, it is a true or false. बड़ा आंसर दो मुझे फटाफट. If A, B and C are the independent events, so in that case A dash, B dash and C dash, they are also the independent events. Here it is a true or false. Very good, brother. Yes, the given statement, brother, it's a true. Very good, all of you. If the given statement, brother, is a true, तो फिर तुम लोग मुझे बताओ, brother. What will be the probability of A dash intersection with a B dash intersection with a C dash? है तुम लोग के पास बोल, ऐसा आंसर दे सकता है तुम लोग? It will be the probability of A dash into the probability of B dash into the probability of C dash. Very good यार, तुम लोग मेरे साथ रहते रहते एकदम स्मार्ट बन गया एकदम. एंड उसके बाद फिर तुम लोग को पता है, you can find the probability of A dash by using the formula 1 minus probability of A. You can find probability of B dash as 1 minus probability of B, probability of C dash as 1 minus probability of C. एंड हर बार तुम लोग को क्या लगता है कि सब में ये मेंशन किया होगा, सब में ये मेंशन किया होगा कि द गिवन सम इज बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट इवेंट्स? अगर सम किसी मुद्दे से भले इंसान ने बनाया होगा तो इट इज वेल एंड गुड, मेंशन किया होगा. बट अगर पता चला कि सम में अगर बोला नहीं है, तो फिर तो तुम्हें वो केस में कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए ना जिससे तुम लोग को पता चले कि द गिवन सम इज बेस्ड अपॉन द इंडिपेंडेंट इवेंट. मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इन जनरल तुम्हें तो ऐसा पता होना चाहिए कि द आउटकम ऑफ वन इवेंट, if it is not going to affect the outcome of other event, so given sum it will be based upon given sum it will be based upon
इंडिपेंडेंट इवेंट्स बड़ा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एग्जांपल्स बड़ा याद रखो. एग्जांपल नंबर 1 बड़ा, if a problem is given bro, to the three student bro, problem bro, is given to the three student bro, and the problem is bro, solved by the student bro. So it is an example of bro, independent events. Acha, if a problem of statistics bro, if it is being given to a three students and we want to find bro, the probability in which the problem will be solved. So bro, problem it can be solved bro, either by A or but it can be solved by B और इवन इट कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय सी. अब यहाँ पे ऐसा जरूरी है बेटा कि प्रॉब्लम ए सॉल्व करेगा तो ही बी सॉल्व करेगा. ए और बी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बेटा तो ही सी सॉल्व करेगा. ऐसा कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है तो मुझे बताओ. नहीं बेटा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा. अच्छा, ए अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा बेटा तो बी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, सी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा. ऐसा कोई बड़ा रूल है नहीं है. प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली either by A or by B or by C. Next one, ये two persons who are participating in the race, right? And we want to find the probability in which any one of the person wins the race. अब यहाँ पे ऐसा है बड़ा कि सपोज इफ द टू पर्सन्स आर ए एंड बी, so if two persons A and B if they are participating with other 8 persons तो ऐसा है कि यहाँ पे ए अगर रेस जीतेगा तो ही बी जीतेगा. तो लो बड़ा यस और नो बोलो फटाफट. टाइप वाई और एन फटाफट. अगर ए हारा बड़ा तो बी भी हार जाएगा, ऐसा है. तो इट इज बट ऑब्वियस बड़ा द आंसर इज नो. बड़ा यहाँ पे रेस कैन बी वन बड़ा इंडिपेंडेंटली आइदर बाय ए और बाय बी. कोई भी किसी के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट नहीं है. कोई भी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है. समझ में आया बड़ा. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्सन स्पीकिंग ट्रूथ और फॉल्स. अब यहाँ पे ऐसा जरूरी है बड़ा कि वन पर्सन इज स्पीकिंग ट्रू तो इट इज कंपल्सरी कि अदर पर्सन विल आल्सो स्पीक ट्रू. जरूरी है बड़ा ऐसा. वन पर्सन इज स्पीकिंग फॉल्स तो अदर पर्सन इज आल्सो स्पीकिंग फॉल्स. नो बड़ा, इंडिपेंडेंटली पर्सन कैन स्पीक बड़ा आइदर अ ट्रू और फॉल्स. कोई किसी के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट नहीं है. करेक्ट. अ कपल हु इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, right, who is expecting a child, so that couple independently either they can have a boy और they can have a girl. बराबर है. या तो फिर फैमिली और अ कपल ऑलरेडी दे आर हैविंग अ वन बॉय तो कंपल्सरी है कि द सेकंड वन विल बी अ गर्ल ओनली. या तो फिर द सेकंड वन विल बी अ बॉय ओनली. कंपल्सरी है independently they can have either a boy or they can have the girl. चलो समझा सब लोग को. यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए इंपॉर्टेंट है. कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी दिए जो यहाँ पे नहीं है
नहीं है तो बेटा तुम लोग वहां पे उसे नोट कर लेना। चलो कोई डाउट पूछना है तुम लोग को? क्लियरली बोलो, कोई डाउट है बेटा? तो लेट मी स्टार्ट बेटा विद द सम्स। फोर्थ सम में आओ, एक्सरसाइज का फोर्थ सम। ए बी सी are the three mutually independent are the three mutually independent with the probabilities 0.3, 0.2, 0.4 respectively. What is the probability of A intersection B intersection C? सबसे इजी बेटा, टिक्की मार के सॉल्व कर देगा तुम लोग। सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। चल भाई, सबको आंसर आ गया? ईशा, लिप्सा, पारवी, कौन सा फॉर्मूला यूज किया तुम लोग? नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड किया तुम लोग? नोट, चलो भाविका, एड्रियन, धवल, yes, it is with a P of A into with a P of B into P of C. Very good. चलो बड़ा नेक्स्ट सब में आओ।
सम नंबर बड़ा 25th में ऑफ एंड मग द सम बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट. Tom speaks truth in 30% cases and Dave speaks truth in 25% cases. What is the probability that they would contradict each other? What is the probability that they would contradict each other? Contradict का मतलब यहाँ पे होता है बड़ा अपोजिट. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब बड़ा यहाँ पे होता है अपोजिट बड़ा. तो तुम लोग मुझे बताओ ये पॉसिबिलिटी कब हो सकता है बड़ा. अब तुम लोग मुझे बताओ if one both the persons if they are speaking truth तो उसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होगा. पढ़ाई के why लिए and मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी. why and खाली बस उतना ही करो टाइप. No, correct. Both the persons if they are speaking false उसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होगा. नहीं होगा. तो when one person is speaking truth and other is speaking बड़ा false तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है. ओके ओके. अब यहाँ पे बड़ा तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि हु इज स्पीकिंग ट्रूथ एंड हु इज स्पीकिंग फॉल्स, तुम्हें पता है किसी को? नो, तुम्हें नहीं पता है. तो यहाँ पे बड़ा कितने पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं? ये सब में बड़ा कितने पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं? अच्छा, दो पॉसिबिलिटीज. कौन से बड़ा दो पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं? अच्छा, वेरी गुड. टॉम स्पीक्स ट्रूथ, डिक स्पीक्स फॉल्स. या तो फिर वेरी गुड बड़ा, वेरी गुड. और टॉम स्पीक्स फॉल्स एंड डिक स्पीक्स ट्रूथ. वेरी गुड बड़ा, परफेक्ट. चल बड़ा, तो ये सब में you can start the sum as well. Sum number 25.
Start. Let A be the event. Let A be the event of Tom picks Tom picks fruit. तो भाई उसका तो प्रॉबिलिटी हम लोग को दिया हुआ है इन द गिवन सम। We are being known with the probability. अच्छा, what is the probability of A? 30%. 30% means but a percentage is always calculated out of 100. बराबर ये देखो, बड़ा A is the event in which the Tom speaks truth. बड़ा so what will be A dash? बड़ा A dash क्या होगा? बड़ा A dash नहीं बड़ा, मैं इवेंट के बारे में पूछ रहा हूँ तेजल। What will be A dash? It will be the event in which the Tom speaks. Very good. Right on. A dash is the event. Tom speaks false. वेरी गुड चेतना, परफेक्ट बड़ा। ये देख, यहाँ से बड़ा मुझे स्टार्ट होगा आंसर। ये देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आंसर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम लोग बड़ा घाई मत करो प्लीज। 1 माइनस 30/100। ये देख, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बड़ा इट विल बी 70/100। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पर लेट लेट देख, बी बी द इवेंट बड़ा, keep writing फटाफट बड़ा। लेट बी बी द इवेंट बड़ा in which Dick speaks truth. बड़ा therefore probability of B, it will be equal to 25%। So this will become 25/100।
चल मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी बी डैश? Is the event, bro, in which the dick speaks. False, bro. So probability of like B dash. Answer is equal to bro, 1 minus probability of B. 1 minus bro, 25 upon 100. और उसका आंसर आ जाएगा बड़े। Therefore, probability of B dash is equal to bro, 75 upon 100. But if you want to find the probability of bro, contradiction, the probability of contradiction will be equal to probability of Tom takes truth, bro. And the takes false, bro. Or or the probability of Tom takes false and takes. अब यहाँ पे मैडम तुम लोग मुझे एक एक करके मैडम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। टॉम takes truth and Dick speaks false and बोला मैडम, तो उसका कौन सा एल्जेब्रा इवेंट यूज होगा मैडम? probability of A इंटरसेक्शन बड़ा B डैश। वेरी गुड। अब मुझे इसका आंसर बोल के बताओ मैडम। probability of Tom speaks false
and but Dick speaks truth. Probability of राइट और आया इसलिए बेटा बीच में कौन आएगा प्लस एंड फिर उसके बाद बेटा वी नो बेटा द गिवन सम इज बेस्ड अपॉन बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स person can speak but independently true or false but by using but the multiplication theorem ये देखो चेक करो ये फॉर्मूला पढ़ाया था तुम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो मैडम चेक करो ऑप्शन बी इज आंसर चलो बेटा वेरी गुड सबको समझा बेटा आज जो पढ़ाया सबको समझा चलो बेटा तो रिमेनिंग पार्ट बेटा विल कंटिन्यू नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ओके बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करके बेटा मैं लास्ट पार्ट स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर का प्रॉपर्टी का चलो बाय ऑल ऑफ यू बेटा टेक केयर